Hello everybody. Today we discuss regarding the chapter of money. Money and banking is one of the important units in class 12th economics for CBSE examination. Before introduction of money, there was a system that is known as the barter system. In the barter economy, the goods are exchanged for another goods. For example, you may exchange books for milk, or you may exchange shoes for clothes, etc. But barter system was not very convenient for the human society, so human beings invented money. And I think all of you know something regarding the money, because all of you purchase something in market. For example, you may purchase mobile phones, dress, stationery materials, textbooks, etc, etc. So money is useful for the buying and selling of goods. And you can say that the currency note in your pocket, like rupees 10, rupees 50, rupees 100, etc., these are forms of money. But we want to know its definition, so we can define it by this term: money is anything which is generally accepted as medium of exchange, measure of value, store of value, and as means of standard of deferred payment. It means the general acceptability is one of the most important feature of money. You agree to accept payment in terms of rupees because rupee is legal tender money in India, and everybody is agree to do transaction in terms of money, in terms of rupees. So rupee is the Indian currency, which is one of the form of money in our Indian economy. On the other hand, in other countries, other currencies, like in USA, that is the US dollar; in England, that is the sterling pound. These currencies do functions the money in their respective economies. There are many forms of money. For example, coins, currency notes, checks, credit card, debit card, etc. And it is useful to exchange anything, purchase anything, and we can measure the value in terms of money, in terms of rupees. We can discuss the functions of money. Basically, there are two types of functions. One is known as the primary function, another is secondary function. The primary functions of money are such as medium of exchange and measure of value. Medium of exchange: money is the generally accepted medium of exchange. It can be used in making payments for all transactions of goods and services. Money has removed the major difficulty of double coincidence of wants. So there is a term, double coincidence of wants. That difficulty we faced in the days of barter economy. We can understand by the simple example. You have already studied in class 10 NCERT books also. मान लीजिए कि आपके पास बहुत बढ़िया कोट है और आपको आवश्यकता है बढ़िया जूतों की आवश्यकता है। तब आप क्या करेंगे? कोट लेके ऐसे आदमी को ढूंढना चाहेंगे जिसके पास जूते हो और वो आदमी भी तैयार हो आपका कोट लेने के लिए। अब आपने एक आदमी को ढूंढा, उसके पास जूते हैं। आपने उसको बोला कि आप कोट के साथ जूता एक्सचेंज करना चाहते हो, लेकिन उस आदमी ने बोला नहीं, मुझे कोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो किताबें चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो गया कि चूँकि आप दोनों के वांट्स में मैचिंग नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सफल नहीं हो पाया। फिर थोड़ी देर बाद आपको एक दूसरा आदमी मिला जिसके पास मिठाइयाँ हैं
और वो आपका कोट लेने को तैयार है, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे तो जूते ही चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है ऐसे आदमी को ढूंढने में जिसके पास वो चीज़ हो जो आप चाहते हैं, और साथ ही साथ वो आदमी इस बात के लिए भी एग्री हो कि आपके पास जो चीज़ है वो उसको लेने के लिए तैयार रहे। उसके बाद फिर दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है कि किस प्रकार से इनका एक्सचेंज किया जाए, यानी कितने यूनिट के बदले में दूसरे चीज़ की कितनी यूनिट ली जाए या दी जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो समस्या है जिसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सो मनी रिमूव दिस प्रॉब्लम बिकॉज एवरीबडी इज़ एग्री टू accept money because money has the general acceptability. General acceptability means कि everybody is agree to take money। सबको मनी से क्या है, मनी में लेने में कोई परेशानी किसी को भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने जो मनी लिया है वो कल को वो किसी और चीज़ को ख़रीद सकता है उस मनी के माध्यम से। ये जो बिलीफ है, ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इसके कारण मनी के माध्यम से बाइंग एंड सेलिंग करना बहुत ही इजी हो गया है। इसलिए क्या है, मनी क्या हो गया है, मीड ऑफ एक्सचेंज के रूप में माना जाता है। और ये मनी का सबसे ज़्यादा बेसिक फंक्शन है कि वो क्या है, मनी इज़ मीड ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये विनिमय का माध्यम के रूप में उभर के आ रहा है। अब जो सेकंड फंक्शन है मनी का, जो बेसिक फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शन है, वो है मेज़र ऑफ़ वैल्यू। अब क्या होता है कि बार्टर इकोनॉमी में ये बहुत समस्या आती थी कि हम किसी चीज़ को किस प्रकार से वैल्यूएशन करें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी का क्या वैल्यू लिया जाए। एक कुर्सी इक्वल टू 10 जोड़े जूते होना चाहिए, या एक कुर्सी का मूल्य आपके 4 चॉकलेट के बराबर होना चाहिए। तो इसका कोई भी सर्वमान्य मानक नहीं था। तो इस प्रकार से क्या था, बार्टर इकोनॉमी में मेज़र ऑफ़ वैल्यू जो था वो एक चैलेंज था। लेकिन अब क्या है, अब आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, यूजुअली आपने टर्म पढ़ा होगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे चॉकलेट आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है MRP 5 रुपीज़। कुछ पेन में रहता है MRP 10 रुपीज़ के पेन रहते हैं। इसी प्रकार बुक्स आप खरीदते हैं उसमें भी प्राइस लिखी रहती है 200 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मनी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेज़रमेंट करना और कंपेयर करना आसान हो जाता है। और मनी के टर्म में जब हम वैल्यू को मेज़र करते हैं उसको हम प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस या कीमत जो होती है, इसके माध्यम से क्या होता है, पूरे इकोनॉमी का सिस्टम चलता है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक में आपने पढ़ा है प्राइस डिटर्मिनेशन, जो डिमांड सप्लाई से जो डिटरमाइन होती है। तो जो प्राइस होती है वो किस टर्म में होती है, मनी के ही टर्म में होती है, कि जिसमें क्या होता है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पर्टिकुलर किसी भी गुड्स का वैल्यू को मेज़र कर ले, और मेज़र करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़फुल होती है, वो होती है मनी। अब इसके अलावा मनी के कुछ दूसरे फंक्शंस भी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। अब जैसे कि इसमें से एक है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट्स। अब डिफ़र्ड का मतलब होता है जो पेंडिंग है, विच इज़ फॉर द फ्यूचर। तो डिफ़र्ड पेमेंट रिफ़र टू दोज पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। तो डिफ़र्ड पेमेंट ऐसे पेमेंट होते हैं जो उसको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये क्यों ऐसा पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो मनी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है कंपेयर टू अदर कमोडिटीज़। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे आज आपने किसी से कोई सामान मंगवाया और आपने उसको कहा कि हम 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे, तो 3 मंथ्स के बाद भी मनी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। इस कारण क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो इजीली इस प्रकार के डिफ़र्ड पेमेंट वाले सिस्टम में वो एग्री हो जाते हैं, और इस प्रकार से इजीली मनी के माध्यम से ये करना ईजी भी होता है और पॉसिबल भी हो जाता है। मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफ़र्ड पेमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं। Value of money remains more or less constant compared to other commodities. Value of money remains more or less constant compared to other commodities. यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। एंड
मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब अगेन जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई मनी को एक्सेप्ट करने को तैयार है, कोई भी रिफ्यूज़ नहीं करता है मनी को लेने से। इसलिए जो उसका जो सर्वग्राह्यता का जो गुण है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी सर्वग्राह्यता, हर कोई इसको ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है। इसलिए मनी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि अपने पेमेंट को थोड़े समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, उसको पेंडिंग रख सकते हैं, और बाद में जब सूटेबल टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, पेमेंट को हम रियलाइज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के रूप में मान्य होता है। सी, या एक और चीज़ इसमें एक और रीज़न दिया हुआ है, मनी इज़ मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू अदर कमोडिटी, इट ऑल्सो इनकरेजेस कैपिटल फॉर्मेशन। तो मनी में क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी का भी गुण होता है कि आपने, जैसे आपके पास मनी है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में जो डिपॉजिट हुआ वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब तक आप उस पैसे को निकालोगे नहीं या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे, तब तक वो आपके पास, आप ही के अकाउंट में, यानी कि आप ही का पैसा है वो, आप उसको अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो मनी जो है वो, आपका जो मनी है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो ड्यूरेबल है, यानी कि उसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं आ रही है। लेकिन क्या होती है कि दूसरे जो गुड्स होती हैं उनमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, घिसावट होती है, खराबी आ सकती है। तो इस प्रकार से क्या है, मनी में चूँकि ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए हम फ्यूचर पेमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ये मनी के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। अनदर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। Money can be stored and does not lose value. Money acts as a store of value due to the following reasons. अब मनी से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। कैसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ योर मंथली इनकम इज़ ₹10,000 and every month you save ₹1,000. So every month you save ₹1,000, and by this way in a year, that means in the 12 months you may save 12,000 rupees. So that is your storing the value. So that is called the accumulation of wealth also. So you and in the 10 years you may save 1,20,000 rupees. So you can easily store the value by your saving money. So that function is known as the store of value. Money acts as a store of value due to the following reasons. इसके reasons क्या क्या हैं? It is easy and economical to store. अब इसको ईजी है स्टोर करना। आपके पास भैया, आपके पास घर में आपने थोड़ा बहुत पैसा रखा, अपने घर में तिजोरी में रख दिया, आपने अपने लॉकर अलमारी में रख दिया पैसा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में आपने हर महीने आपने पैसे जमा किए। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आपका वो जो मनी जो है वो धीरे धीरे करके स्टोर हो रहा है। साथ ही साथ क्या होता है, बैंक आपको क्या करता है, आपके डिपॉजिट पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देता है। तो वो क्या होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाता है, तो ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर कर लेते हैं। इस प्रकार से जो स्टोर ऑफ वैल्यू वाला जो फंक्शन है वो मनी के माध्यम से ईजिली हम कर सकते हैं। सेकेंड, मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। अगेन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया है कि आप इसलिए उसको स्टोर कर लेते हो क्योंकि आपको मालूम है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, उसको आप खर्च कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ लेनी हो, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल फ़ोन लेना हो फ्यूचर में, आपको बाइक लेना हो या आपको कार ख़रीदना हो, तो ये जो आपका जो सेविंग के रूप में आपने जो स्टोर किया है मनी को, ये आप इसको बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड, वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट। तो जो मनी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि मनी को सेव करना, मनी को स्टोर करना आपके लिए क्या है, एक प्रकार से सूटेबल भी होगा और इसमें ज़्यादा जोखिम भी नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करते हो, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मनी इज़ कॉल्ड द स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द सेकेंडरी फंक्शंस आर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट फ्यूचर में किए जाते हैं, एंड सेकेंड इज़
स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे करके अपने मनी को एक्यूमुलेट करते हुए क्या कर सकते हो, वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, जो कि फ्यूचर में भी आपके काम आ सकता है। अब आते हैं हम, एक और कंसेप्ट है जो दैट इज़ कॉल्ड द मनी सप्लाई। अब सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो पब्लिक के पास जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो होता है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। और ये क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसको किस में मेज़र किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एज ऑन 1 जनवरी 2020 जो भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है हमारी इंडियन इकोनॉमी में लोगों के पास, दैट इज़ कॉल्ड द मनी सप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। बट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि हमारे इंडिया का जो एपेक्स मॉनेटरी बॉडी है या एपेक्स बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा इंडिया में सप्लाई ऑफ मनी को मेज़र करने के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट उन्होंने मेज़र्स लिए हुए हैं। तो इनको हम बोलते हैं M1 मेज़र, M2 मेज़र, M3 मेज़र, M4 मेज़र। इनके थोड़े डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं। रीज़न ये है कि मनी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका कैश फॉर्म होता है, इसके अलावा डिपॉजिट फॉर्म भी होता है। तो दोनों टाइप के फॉर्म्स होने के कारण क्या होता है कि जब हम सप्लाई ऑफ मनी को जब मेज़र किया जाता है उसके डिफरेंट फॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। तो जो हमारा जो इसमें से जो सबसे पहला है वो है M1 कंसेप्ट। M1 इक्वल टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो हमारे इंडिया की करेंसी क्या है, जैसा कि आप जानते हैं रुपीज़, या जो कैश फॉर्म होता है, जैसे कि इसमें क्या करेंसी नोट आ गया और कॉइन्स आ गए, जो कि लोगों के पास हैं, आपके पास भी होता है, आपके जेब में रहता है, आपके घरों में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो करेंसी क्या होता है, जो कैश फॉर्म होता है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, सूटेबली हम क्या कर सकते हैं, रेडी टू पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होता है कि ऐसी संस्थाएं जो क्या करती हैं, आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं और साथ ही साथ क्या करती है, लोन भी देती हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा ICICI बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिससे कि आपका फ़ीस पेमेंट होता है जिसके थ्रू। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक्स हैं। तो इनके यहाँ क्या होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसमें से जो डिमांड डिपॉजिट्स होता है पब्लिक का, जो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ M1। तो डिमांड डिपॉजिट किस टाइप का होता है, थोड़ा सा आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप जो कमर्शियल बैंक में जो करेंट अकाउंट खुलवाते हो या फिर जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, तो उसमें जो पैसा होता है बैंक आपको फैसिलिटी देता है कि आप उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। मांगने पे बैंक आपको वो पैसा दे देता है। तो किस प्रकार से आप मांगते हैं, एक तरीका तो ट्रेडिशनल होता है कि आप बैंक में जाते हो, विड्रॉल स्लिप भर के वो पैसा निकाल लेते हो। दूसरा तरीका होता है कि बैंक से आप चेक बुक ले लेते हो और चेक के माध्यम से निकालते हो, या चेक के माध्यम से थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देते हो। इसके अलावा आप आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, तो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी उस पैसे को क्या कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके डिमांड पर बैंक क्या करता है, उस पैसे को आपको देने के लिए या आपके कहने पे किसी थर्ड पार्टी को देने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार के डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स। इसके अलावा एक चीज़ और आती है इसमें, जो थर्ड कंपोनेंट, इट इज़ अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको जैसे कि पता है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि हमारे इंडिया का एक मॉनेटरी अथॉरिटी होता है। तो जो भी फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं या फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया,
वर्ल्ड बैंक हो गया, जिसका नाम है IBRD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर इसके अलावा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया। तो ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, ये भी क्या करती हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक में पैसे जमा करती है। तो इनके द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो रुपया जमा किया जाता है, वो क्या होता है, इंडिया के सप्लाई ऑफ मनी में इनका भी योगदान रहता है, और इसे ही हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीन कंपोनेंट मिलके क्या होता है, हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी का जो पहला कंपोनेंट होता है M1, उसको ये पूरा करता है। और M1 को हम क्या बोलते हैं, M1 के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं नैरो मनी भी बोलते हैं, और ये सप्लाई ऑफ मनी का मोस्ट लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई एसेट कितना जल्दी कैश में कन्वर्टिबल हो सकता है। तो इस प्रकार से जो कैश होता है वो मोस्ट लिक्विड माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सप्लाई ऑफ मनी में हम देखते हैं कि इसमें चूँकि जो चीज़ें हैं वो इजीली क्या हो सकती हैं, हम पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो होता है, आप रात को भी UBI के थ्रू क्या करते हो, अपना फ़ीस पेमेंट कर देते हो, भले ही बैंक बंद रहे, बैंक में स्ट्राइक रहे, फिर भी आप क्या कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट के माध्यम से। बस आपका नेटवर्क ठीक होना चाहिए, आपका जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, जिसके माध्यम से पेमेंट करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली रात के समय में भी या संडे के दिनों में भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, IRCTC से टिकट्स परचेज़ कर सकते हो। तो उसमें जो आपका जो नेट बैंकिंग है या जो डेबिट कार्ड है वो यूज़फुल होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली यू यूजिंग द योर डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ M1। तो इस प्रकार से M1 को क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, एज वेल इट इज़ द नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी। नैरो मनी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, जो अदर कंपोनेंट्स है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो अदर कंपोनेंट्स है वो किस में आएंगे, आपके जो नेक्स्ट जो अदर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है उसमें आएंगे, जैसे कि M2। जो M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। आपको ये पता होगा कि आपके घरों के आसपास जो सेविंग जो आपके पोस्ट ऑफिसेस है वहाँ पे भी कुछ लोग पैसे जमा करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस भी क्या फैसिलिटी देता है कि हमें सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा करते हो, वो भी क्या होता है, ये M2 में का पोर्शन बन जाता है, यानी कि M1 में इसको हम ऐड कर देते हैं, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ जब हम सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस को भी जब ऐड कर देते हैं तो M2 बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चूँकि कंपोनेंट ज़्यादा हो गया इसमें, जहाँ M1 में ओनली 3 कंपोनेंट्स हैं, M2 में कितने हो जाते हैं, M1 के अलावा एक और आ जाते हैं, नहीं कि टोटल 4 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये कंपेयर टू M1 थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी कुछ कम हो जाती है। कारण क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसमें उतना फास्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता जितना कि बैंक के डिमांड डिपॉजिट में हो सकता है। इसलिए क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी में कमी आ जाती है। तो ये जो M2 है, इट इज़ द M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या हो जाती है, M2 कहलाती हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट है, डेट इज़ कॉल्ड द M3 इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें क्या है कि अगेन M1 में आ जाते हैं। M1 में जो 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 चीज़ों के अलावा एक चौथी चीज़ उन्होंने और जोड़ दी है, दैट इज़ कॉल्ड द नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक में आप जब अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास कई प्रकार के अकाउंट रहते हैं। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। तो टाइम डिपॉजिट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसको हम
बोलते हैं बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं जिसको हम लोग। ये क्या होता है कि मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 इयर्स के लिए आपने क्या किया, बैंक के पास एक सम्स ऑफ मनी जमा किया, तो अप टू 3 इयर्स आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप जब चाहे उसको डिमांड करके नहीं निकाल सकते हैं। बैंक आपको कब देगा? आफ्टर 3 इयर्स, यानी इट इज़ कॉल्ड द मैच्योरिटी पीरियड। आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड ही उस पैसे को आप बैंक से निकाल सकते हो या उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया है, क्योंकि आप इसको आप चेक के माध्यम से या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसलिए इसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि ये फिर भी ये क्या है कि मनी का ही कंपोनेंट है, सप्लाई ऑफ मनी का कंपोनेंट है, इसलिए क्या हो जा रहा है, कंपेयर टू M1 एंड M2 थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है। तो टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि आपके जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स में, जो कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही बैंक आपको दे सकता है, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। अब इसमें एक वर्ड आ गया नेट टाइम डिपॉजिट। अब नेट का मतलब होता है कि वो ऐसे टाइम डिपॉजिट जो कॉमन पब्लिक के द्वारा बैंक में रखा जाता है। उसमें वो वाले डिपॉजिट नहीं आएंगे जो एक कमर्शियल बैंक है तो दूसरे कमर्शियल बैंक में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि सपोज़ जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसने थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप खुलवाया किसी दूसरे बैंक यानी कि इलाहाबाद बैंक में। तो इस प्रकार के जो एक बैंक के दूसरे बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, उसमें जो रुपीज़ जमा रहते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसको छोड़ने के बाद जो कॉमन पब्लिक के जो फिक्स डिपॉजिट बचते हैं उसको ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और इसीलिए इसमें टर्म यूज़ होता है नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स का जो डिपॉजिट हो गया, इसको भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से M3 क्या हो जाएगा, कंपेयर टू M1 एंड M2 थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया, और लेकिन साथ ही साथ क्या हो रही है, लिक्विडिटी में कमी आ गई है इसमें, क्योंकि जो टाइम डिपॉजिट होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं है चेक के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से। इसके बाद जो फोर्थ इसका जो कंपोनेंट है या फोर्थ जो मेजरमेंट है मनी सप्लाई का, डेट इज़ कॉल्ड M4। M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब पोस्ट ऑफिस में आपने क्या पढ़ा था अभी थोड़ा पहले M2 में कि सेविंग डिपॉजिट होता है। इसके अलावा कुछ और डिपॉजिट भी ले लीजिए पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि आपका होता है नेशनल सेविंग स्कीम होता है, फिर आपका MIS अकाउंट होता है। तो इस प्रकार के जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको भी हम ले लेते हैं यदि हम, लेकिन बस एक चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया, डेट इज़ कॉल्ड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC जिसको हम बोलते हैं। तो NSC के अलावा जो बाकी जो जितने प्रकार के भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में पब्लिक के द्वारा, उसमें जो भी रुपया जमा रहता है वो वाला रुपया प्लस M3 यानी कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इतने चीज़ों को जब हम मिला लेते हैं तो ये बन जाता है M4। तो M4 क्या हो जाता है, ये ब्रॉड मनी कहलाता है। ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट है ये सप्लाई ऑफ मनी का, इसलिए इसको ब्रॉड मनी बोलते हैं। तो ब्रॉड मनी जो होती है ये इसका कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि लिक्विडिटी कम हो जाती है। जो लिक्विडिटी हमारा M1 में रहता है, क्योंकि इसमें करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट रहता है, वो लिक्विडिटी इसमें नहीं रहती है। आप इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट को आप तुरंत के तुरंत आप खर्च करने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट लिक्विड मेज़र ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम M1 से हम M4 की ओर आते हैं लिक्विडिटी में कमी आती है, लेकिन क्या होता है, साथ ही साथ ब्रॉडनेस बढ़ता जाता है सप्लाई ऑफ मनी का। दूसरी ओर जब हम M4 से वापस M1 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लिक्विडिटी तो बढ़ती है, लेकिन मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कम हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें नैरोनेस आ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज हम क्या कहते हैं, M1 इज़ द नैरो मनी एंड M4 इज़ द ब्रॉड मनी। M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड। तो ये आपको चार जो कंपोनेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद एक टर्म और यूज़ होता है हाई पावर्ड मनी, यानी प्रबल मुद्रा जिसको हम बोलते हैं, या उच्च शक्ति मुद्रा भी बोल सकते हैं हिंदी में।
हाई पावर्ड मनी रिफर्स टू करेंसी विथ पब्लिक एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स। अब पब्लिक के पास जो होता है, जो करेंसी होता है, ठीक है ना, वो करेंसी और उसके साथ जो बैंक में जो कैश रिज़र्व होता है, वो जब दोनों को मिलाते हैं उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब इसमें जो बैंक के पास जो कैश रिज़र्व होता है, इसके माध्यम से ही बैंक क्या करता है, वो मनी क्रिएट कर सकता है, इसलिए क्या होता है, इसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। तो हाई पावर्ड मनी में दो ही कंपोनेंट्स आते हैं, एक होता है करेंसी विथ पब्लिक, अनदर इज़ द कैश रिजर्व ऑफ द बैंक्स। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं जो मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी में लगी रहती हैं। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके डेफिनेशन में फिर से वापस आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा एक चीज़ को। सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। यानी कि जो पब्लिक के पास जो भी टोटल मनी होता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, वो उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। तो इसमें उस मनी को हम ऐड नहीं करते हैं जो सप्लायर ऑफ मनी के पास रहता है। तो सप्लायर ऑफ मनी यहाँ पे क्या क्या हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे सप्लायर ऑफ मनी हो जाते हैं सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक किस फॉर्म में आता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या है, हमारे इंडिया में करेंसी अथॉरिटी है। हम बाद में डिस्कस करेंगे इस पे, हम जब फंक्शन सेंट्रल में पढ़ेंगे कि आपने देखा होगा करेंसी नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन देता हूँ, ठीक है ना, अदा करने का वचन देता हूँ, इस तरह का जो सेंटेंस लिखा रहता है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ही है कि करेंसी नोट को सर्कुलेट करने के माध्यम से क्या करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, सप्लाई ऑफ मनी में रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक होता है, वो जब आपको लेंडिंग करता है, यानी कि जो लोन देता है, उसके माध्यम से क्या करता है, वो भी सप्लाई ऑफ मनी में रोल प्ले करता है। तो इनके पास जो खुद के जो पैसे रहते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जो बाकी जो बचता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पब्लिक के पास जो पैसा है, पब्लिक के पास जो मनी है, तो केवल उससे ही लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पब्लिक का मतलब है कि पब्लिक के पास ही रहेगा, वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं है जो रिजर्व ऑफ इंडिया के पास रहता है या कमर्शियल बैंक के पास जो रहता है, क्योंकि ये क्या है, ये खुद मनी की सप्लाई करने वाले यूनिट्स हैं, संस्थाएं हैं जो सप्लाई ऑफ मनी में रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द सप्लायर्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब आपके लिए थोड़े से होमवर्क असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मनी। तो आपको क्या करना है, मनी की डिफिनेशन को क्या करना है, समझ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। थर्ड इज़ एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज़ डिफाइन M1, M2, M3 एंड M4। यानी कि जो मनी सप्लाई के जो चारों कंपोनेंट्स है, उसके बारे में आपको क्या करना है, उसको समझाना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।